our session next, which is Adhura Admi, Adhuna Nari. And we have Shama Sharma, we have Anamika, Preeta Bhargav, Sushila Sharma. So make sure that you don't do any flash photography. Thank you so much. Back. Okay, well, it says that my name is Fahmida Riaz and I'm a Pakistani poet and writer, and I've come here on the invitation of this. It's a great chance for me to introduce you to some of the things being written in Pakistan now for several years, right? Especially by women. But the theme of this today is in Urdu and Hindi together, which is Adhura Admi or Adhunik Nari. Adhuna Nari. Adhuna means modern Nari. So, well, since I believe that subcontinental women, whether they are Bangladeshis, Pakistanis or Indian, live under very similar circumstances and under similar attitudes, under similar male attitudes. Therefore, I think that what an Indian woman writes can very well represent what Pakistani women feel, the modern women, who have to break all the myths that have been created about them, just to conveniently somehow give them a status a little lesser than human, right? So even some very good attributes are given to them, such as they're always so loyal, they are so quiet, and they would just do anything to please their lord and master, who is mostly their husband or their lover. So what do? Is I begin with some of my poems in which I quite naturally responded to it. So one of them is, for instance, see, since adolescence, girls fall in love, so do boys, but somehow it is expected of girls that whatever happens to them, whatever excesses is committed against them, but they would, never turn down a man, and they would remain waiting endlessly. This is the ideal of the subcontinental, I should say, woman, the ideal woman who's forever patiently waiting for the favors of the male. So the first poem I would read is this. It's called Apne Dost Ke Liye, right? And I would read it out in Urdu, which I hope you people will understand. It's the same language as Hindi actually, it's just a bit of a difference, right? ये ज़र्द मौसम के खुश्क पत्ते हवा जिन्हें ले गई उड़ाकर, अगर कभी इनको देख पाओ तो सोच लेना कि इनमें हर वर्ग की नमू में ज़िया गया अर्थ शाख़े गुल का। कभी ये सरसब्ज़ कोपले थे, कभी ये शादाब भी रहे हैं, खिले हुए होंठ की तरह नर्म और शगुफ्ता। बहुत दिनों तक ये सब्ज़ पत्ते हवा के रेलों में बेबसी से तड़प चुके हैं, मगर ये अब खुश्क हो रहे हैं, मगर ये अब खुश्क हो चुके हैं। अगर कभी इस तरफ से गुजरो तो देख लेना, पर है न शाखें हवा के दिल में गड़ी हुई हैं, ये अब तुम्हारे लिए नहीं है। The other one is the myth and the expectation that inside marriage, once a woman gets married, then it brings the ultimate satisfaction to all her being. And within marriage, a woman just simply reaches a nirvana of a sort, and there's nothing else in existence for her. So here is a poem called Bhigi
काली रात की बेटी. So this shows you a woman in the sort of bed of marriage with her husband, and she could still feel very dissatisfied, and not just dissatisfied with the men, but with life, because she wants to do something more than that, because life expects something other than just being a wife. So this is Bhigi Kali Raat Ki Beti. It goes like, उसकी आगोश में कितनी गर्मी है, मैं किस तरह उसकी आगोश को छोड़ दूं. उसकी आगोश में कितनी गर्मी है, मैं किस तरह उसकी आगोश को छोड़ दूं. उसके होठों की मानूस खुशबू मुझे कर चुकी है असीर. उसको मालूम क्या, उसको मालूम क्या, उसको मालूम क्या, उसको मालूम क्या, मेरे कमरे के बाहर बहुत जोर से मेरी खिड़की पे सर को पटकती हुई चल रही है जो सरमा की तीखी हवा. घिर के उमड़ी चली आ रही है जो पश्चिम से काली घटा. घोर अंधेरे के सीने में गूंजी है जो बूंदियों की सदा. उनसे बचपन का मेरा बड़ा साथ था. से बचपन के मेरे. Then also women, there is such a great amount of importance which is given to virginity of a girl, right? A girl must be virgin when she gets married. If she's not virgin, if the husband finds out that she's not virgin, then the marriage can actually break, and actually they do. And in many, in tribal areas, at least I know about Pakistan, and even in so many cities, actually, after the first night, the bed sheet on which she has been deflowered is exhibited. It is exhibited to all the family to prove that the girl was a virgin and that there was some wedding when the wedding night happened. So this is, and nobody asks the same question to the bridegroom. There's nothing that would prove his virginity, and virginity is only supposed to be a very big, something for. I mean, weddings would not take place, marriages would not take place if the girl was not a virgin. So my poem is called, the name of the poem is The Virgin, right? In that, because I come from the Muslim community, the Abrahamic traditions, right? What we call Muslim basically is a continuation of Abrahamic traditions, which is the Judaism, Christianity, and then Islam, these three Abrahamic religions, in which there's also animal sacrifice. And strangely enough, and this is, you would find it in the Old Testament actually, you would find it in Judaism, that the animal of sacrifice should be completely flawless. You can't take an animal which is not well to the sacrifice. So the woman is also treated very much like a sacrificial animal. So it says like this, and I have used the same diction, the same similes, religious similes, which are, you could say they are Islamic, but at the same time they are Abrahamic. So it is this. So it is Bakra. Bakra means the virgin. आसमां तपते हुए लोहे की मानिंद सफेद, रेग सूखी हुई प्यासे की जुबां की मानिंद. प्यास हल्कूम में है, जिस्म में है, जान में है. सर बजानू हूँ झुलसते हुए रेगिस्तां में, तेरी सरकार में ले आई हूँ ये वहशी ज़बीन. The sacrificed animal, वैसे ज़िबा करने से ज़बी बना है. तेरी सरकार में ले आई हूँ ये वहशी ज़बी, मुझ पे ला
लाजिम थी जो कुर्बानी सुबह ने कर दी। इसकी उबली हुई आंखों में अभी तक है चमक और स्याह बाल हैं भीगे हुए खून से अब तक। तेरा फरमान ये था इस पे कोई दाग न हो, सो ये बेऐब अछूता भी था अनदेखा भी। बेकरार रेग में सब गर्म लहू जज्ब हुआ, देख चादर पे मेरी सब थे इसका धब्बा। ए खुदावंद कबीर ए जब्बार मुतकब्बिर व जलील, हाँ तेरे नाम पढ़े और किया ज़िबाए से। अब कोई पारे अब राय कहीं साया हो, ए खुदावंद अजीम बाद तस्कीन के नफस आग बना जाता है। कतरे आब की जहाँ लब पे चली आई है। इन्होंने टेक्स्ट के माध्यम से बताया कि पाकिस्तान में अधुना स्त्री की ये 3 कोड कौन से हो सकते हैं और उसको कैसे वो उससे जूझ रही है। हम लोग जो यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हैं ये इसका अलग तरह का आयाम सामने रख सकते हैं। आप लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ कि इससे अलग या इसके आसपास जो भी आपको कहना हो, या तो अपने टेक्स्ट के माध्यम से, रिटन टेक्स्ट के माध्यम से, या यूँ ही वो आप कह सकते हैं। मैं प्रीता भार्गव हूँ। राजस्थान में जेल विभाग में एक अधीक्षक, एक जेलर के रूप में सेवा करती रही हूँ। जेल में जो लोग आते हैं हम उन्हें जितना करीब से देखते हैं और उनको महसूस करते हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, उनके भीतर की एक खालीपन, एक कमजोरी, एक विवेक को पार करके, सही और गलत के फैसले को पार करके, अलग करके जो वो कर बैठते हैं और उसके बाद वो जेल में आते हैं। और एक इंसान कैसे जेल में लगातार अपनी गलती पर पछताता है, सुधारने की कोशिश भी करता है, बिगड़ता भी है, उन स्थितियों को मैंने बारीकी से देखा है। उसके अतिरिक्त क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, इसलिए एक औरत को किस तरह से बंधन में रखा जाता है वो भी मैंने देखा है। उसको मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ 2 कविताओं के। पहली कविता है मेरी कि जान गई हूँ आसमान में सिर्फ हवा का सूनापन है। जान गई हूँ आसमान में सिर्फ हवा का सूनापन है। चमकीले हैं चांद सितारे, जान बूझकर गाऊं कैसे, अपने को भरमाऊं कैसे। अनजानी राहों पर चलते, कदम कदम मंजिल को छूते, उन कदमों के नीचे की वो रोंदी धूप दिखाऊं कैसे, जान बूझकर गाऊं कैसे, अपने को भरमाऊं कैसे। दीपक दीपक बाती जलती यह तो सभी देखा करते, दीपक दीपक बाती जलती यह तो सभी देखा करते, बाती बाती कौन समाया इसका भेद बताऊं कैसे, जान बूझकर गाऊं कैसे, अपने को भरमाऊं कैसे। चमक चौंध सौंदर्य रिझाती दुनिया की मुखरित हरियाली, चमक चौंध सौंदर्य रिझाती दुनिया की मुखरित हरियाली, पर कालिक की 30 अनकही शब्द जाल में बांधूं कैसे, जान बूझकर गाऊं कैसे। इसमें अंतिम है कि देखा सावन देखी पावस देखी वासंती हरियाली, देखा सावन देखी पावस देखी वासंती हरियाली, अपनापन पतझर से पाया सबसे प्रीत लगाऊं कैसे, जान बूझकर गाऊं कैसे, अपने को भरमाऊं कैसे। और एक और कविता प्रस्तुत कर रही हूँ लड़कियों के नाम कि जहाँ लड़कियाँ अपंग भिखारी बनकर खड़ी रहती हैं इंतजार में,
दूसरों के दर्पणों के सामने मैं उन सबको 100 बार धिक्कार करती हूँ। जहाँ लड़कियाँ अपंग भिखारिन बनकर खड़ी रहती हैं इंतजार में दूसरों के दर्पणों के सामने, मैं उन सबको 100 बार धिक्कार करती हूँ। और जहाँ लड़कियों के जन्म से पहले ही सिर दिए जाते हैं उनके रंग बिरंगे और तालों वाले जोगे, मैं उन परिवारों को अपनी सभ्यता से खारिज करती हूँ। मैं उन परिवारों को अपनी सभ्यता से खारिज करती हूँ। जहाँ इज्जत की अफीम में सह जाती हैं लड़कियाँ सारे बलात्कार और खिलवाड़, जहाँ इज्जत की अफीम में सह जाती हैं लड़कियाँ सारे बलात्कार और खिलवाड़, मैं उन बस्तियों के मुखियाओं पर जालसाजी का दावा करती हूँ। मैं उन बस्तियों के मुखियाओं पर जालसाजी का दावा करती हूँ। और जहाँ जवान लड़कियों के नंगे बदन टांग दिए जाते हैं शहर के चौराहों पर रंगीन पोस्टरों में, जहाँ जवान लड़कियों के नंगे बदन टांग दिए जाते हैं शहर के चौराहों पर रंगीन पोस्टरों में, मैं उस शहर को वीरान होने का श्राप देती हूँ। इसमें अंतिम है कि जहाँ लड़कियाँ सृष्टि रचने की बजाय बन जाती हैं बिस्तर की सलवट और मांस के टुकड़े, मैं उन हैवानी बस्तियों को अपनी कलम से कत्ल करती हूँ। मैं उन हैवानी बस्तियों को अपनी कलम से कत्ल करती हूँ। क्षमा जी, आप कविताएं नहीं लिखती, लेकिन आपकी कहानियों के माध्यम से हम बात कर लेंगे। आप लेकिन कविता वाला दौर लेने के बाद ही आप पहले बोलना चाहेंगे कि आधुनिक स्त्री के कौन से रंग हैं जो काउंटर करते हैं अधूरे व्यक्ति को पूरा करने की ओर हमारे कैसे जा रही है ये सदी। मैं सोच के आई थी कि मुझे आज ये शाम मीता जी के साथ ही बितानी है। अपने बारे में कुछ नहीं कहना है और मैं कहना भी नहीं चाहती हूँ, और थोड़ी बात मीता जी के बारे में ही कहूँ क्या? वो बातचीत का दौर हमारा आधा बढ़ा हुआ है। नहीं, ये बातचीत नहीं, सिर्फ इतना जी आप कहिए। एक कविता आपकी ही थी, चादर और शादी होने, वो उसको मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे अपने ही देश की तमाम चीज़ें, घूंघट में लिपटी औरतें और तमाम तरीके की चीज़ें अखबारों में रोज आती हैं, तो हमेशा आपकी कविता याद आती है। तो मेरा अनुरोध होगा कि आप उसको भी सुनाइए। जरूर। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि औरत होने के नाते बहुत सी लेवल्स हैं जिन पर हमको आज मॉडर्न औरतों से सोचना है। तो जैसे कि हम सब काफ़ी लोग इस बात को समझते हैं कि स्टेट जब नहीं था और लॉज नहीं थे तो रिलीजन उसकी जगह काम करता था सोसाइटी को चलाने का। और चूँकि हज़ारों बरस से ये बात हज़ारों ही बरस से जारी है कि ताकतवर होने की वजह से जो मेल है वो डोमिनेट करता रहा है। तो जहाँ उसने गुलाम बनाए हैं हमारी अपनी जो थिंकिंग है, मतलब मुझे तो मार्क्सिज्म की बहुत सी बातें काफ़ी सही लगी हैं, तो उनके मुताबिक तो जिस वक्त से की प्रॉपर्टी उसने अपनाई, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी शुरू हुई, उसके साथ ही औरत को भी प्रॉपर्टी से जोड़कर और एक निचला दर्जा दे दिया गया उसको। तो वही ज़माना था जब रिलीजन्स भी बने हैं। तमाम दुनिया के रिलीजन्स हमेशा से ऐसे नहीं थे, वो भी इवॉल्व करके आए हैं। तो उन रिलीजन्स को भी अगर आप देखें तो उन्होंने भी औरतों के लिए अजीब अजीब सी कुछ बातें तराश रखी हैं और वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में बने हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में हम लोगों ने एक सेमिनार कराया था जिसमें हम देख रहे थे कि उर्दू लिटरेचर में औरत का किरदार कैसे पेश किया गया है, यानी कि बहुत बड़े बड़े ऑथर्स वो खुद औरत को कैसे समझते हैं। तो उनमें राजेंद्र सिंह बेदी भी हैं। उसमें हमने इंडियन फिलॉसफी को भी डिस्कस किया था कि ये जो आइडिया है कि पुरुष और प्रकृति का, कि भाई मेल को उन्होंने प्रकृति और उसका जो अपोजिट है प्रकृति और पुरुष का और उसके बाद अर्धनारीश्वर का तो है, लेकिन प्रकृति के जो एट्रीब्यूट किए गए हैं कि उसमें
क्या क्या है और पुरुष में क्या क्या है। तो वो भी शायद एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का था, और क्योंकि उसके अंदर प्रकृति का सिंबल औरत बनकर निकलती है। हम लोग वहाँ पाकिस्तान में जाहिर है इंडियन फिलोसफी को इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ सके, लेकिन हम लोग उसको डिस्कस करने की और समझने की हमारी औरतों ने कोशिश की है। जिस तरह का लाहौर में सेमिनार हुआ था जिसमें पुरुष और प्रकृति के किए गए थे कि ऐसा तो नहीं है कि वो एट्रीब्यूट्स मसलन बहादुरी, मसलन ताकत, मसलन रेजिस्टेंस, ये चीज़ें जो हम समझते हैं कि सिर्फ पुरुष में है और प्रकृति में तो रिप्रोडक्शन और ये सब ज़रा आर्बिट्रेरी है। What I would like to know इसके आप लोग इसके बारे में क्या सोचती हैं जो आज इस पैनल पे बैठी हैं ख़वातीन, कि क्या खुद इंडियन फिलोसफी में मैंने जो इस्लाम के अंदर तो नहीं था, क्योंकि वो इस्लाम तो बेसिकली एक ट्राइबल किस्म की चीज़ थी, तो वो कहीं ज़्यादा आज़ाद होती है। ट्राइबल जो है वो फ्यूडल से ज़्यादा आज़ाद होती है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन जो कंटिन्यूएशन में इस्लाम के नाम पर जो औरत के लिए मुकर्रर की गई हैं चीज़ें, मसलन ये कि 4 बीवियाँ, मसलन ये कि हरम के अंदर रख लो, मसलन ये कि लड़ाई में जो औरतें कैदी बने वो सब बांट दो, जिस तरीके से दूसरी चीज़ें हैं खाने पीने की चीज़ें और माल और गनीमत बांट रहे हैं, वैसे औरतें भी बांट दो। तो इस पर मैंने बहुत कुछ लिखा है और इस पर बहुत मुझे बुरा भला भी कहा गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो बहुत सारी औरतें इस तरह लिख रही हैं। तो क्या यहाँ पर जो बेसिक आइडिया है इंडियन आइडियोलॉजी का, उस पर हमारी ख़वातीन ने कुछ गौर किया है इस पर? इको फेमिनिज्म में तो प्रकृति अगर पहर ठाना चाहे आपका तो वो भी ठाती है, और आज भारत में ऐसा है कि ज़्यादातर शिक्षा दी जो स्त्रियाँ वो अकेली हो गई, पढ़ी लिखी औरतें दुर्सामिनी की तरह अकेली हो गई हैं, और वो अपने प्रेमियों को, अपने पतियों को अपना तीसरा बच्चा मानने लगे। हुआ क्या है कि वो लगातार माफ करते करते और ना तो उनका नैतिक तो वो तनमन, पहले तो तनमन से सिर्फ परिवार की सेवा करती थी, अब तनमन धन से घर और बाहर तो केयर एथिक्स जो है इंडियन फेमिनिज्म में अभी भी सेंट्रल है, ऐसी बात नहीं है। 3 पीढ़ियां और संभाली रही है, घर भी बाहर भी। और आपको पता है तो ये है ना कि दहेज है एक किस्म का, हाँ। ससुराल वाले सिर्फ दहेज की तरह कहते हैं, लड़की काम करती है, नौकरी करती है, कितने पैसे मिलते हैं, जीवन भर का दहेज आता है। वो तो पेट्रियार्की को आदमी उसको होता क्या है कि हमारे यहाँ जवानी को और रूप को इतना जरूरत से ज्यादा तरजीह दी गई है कि जब औरत बूढ़ी होने लगती है तो वो पितृसत्ता को अपने में इसको इंटरनलाइज कर लेती है और वही भाषा बोलने लगती है जिससे वो पीड़ित रही है। ये धीरे धीरे दूर हो रहा है। अब सास बहू के बहुत अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं। और तीसरी बात ये मुझे कहना है कि ये जहाँ तक इंडियन फिलॉसफी का सवाल है, आपने वो सवाल उठाया था, जितनी भी देवियाँ, ये बहुत बड़ी आयरनी है आपका कि यहाँ अगर औरतों को देवी बताते हैं तो उसको तो मरियम सी एकदम पिलमरू सी बना के बिठाते हैं, लेकिन यहाँ जो देवियों का आइकन है ये सब के सब, पार्वती ने शिव से शादी करने के लिए हिमालय से पंगा ले लिया और उसके सीता ने मतलब सिंगल पेरेंट का सबसे बड़ा रोल निभाया और मना करते करते वो लक्ष्मण रेखा लांघ तो गई। वो ये कितना बड़ा वो एक तरफ आइकॉन है कि कोई हम लोग कह सकते हैं लक्ष्मण रेखा लांघ गई, लेकिन अगर नहीं लांघती तो रावण कभी पराजित नहीं होता। हमारे यहाँ तो लक्ष्मण रेखा लांघ जाना भी एक बड़ी बात है। सरस्वती इंसेस्ट का आदिकालिक उदाहरण है और वो भी अगर उनके साथ इंसेस्ट हुआ, सेक्सुअल वायलेशन हुआ तो भी विद्या जो ज्यादातर स्त्रियां आजकल इस स्थिति में हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम ट्रांसेंड करते उस ट्रॉमा को, हम पढ़ लिख कर संगीत और साहित्य के माध्यम से ट्रांसेंड कर लेते। वो तो जो है वो तो देवियों का वृक्ष का वो जी समाज के ब्रह्मा को इधर की वो जटिल है यहाँ का, क्योंकि बहुत पुरानी सभ्यता है, इसलिए दोनों तरह की लहरें चलती रहती हैं। और अभी हम लोग कविता के माध्यम से अगर
कहना चाहें तो मैं 2-3 रंग हैं इसके आज की और यहाँ की औरतों के। एक तो घरेलू कामकाज में जो फंसी हुई स्त्रियां हैं उनमें भी कैसे चेतना आई है। कविता यूं है, मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई। अंदर आने वाले तो देखा, चल रहा है एक बृहद चक्र। चक्की रुकती है तो चरखा चलता है, चरखा रुकता है तो चलती है कैंची सुई। गरज है कि चलता ही रहता है अनवरत कुछ कुछ, और अंत में सब पर चल जाती है झाड़ू। तारे बुहारती हुई पहाड़, वृक्ष, पत्थर, सृष्टि के सब टूटे बिखरे पत्रे जो एक टोकरी में जमा करती जाती है मन की दुछत्ती पर। तो ये जो है कामकाज रचने में फंसी हुई औरत का किरदार है। एक हम जैसी औरतें हैं जो के बाहर भी जाती हैं, उनका हश्र क्या है। ये है, दरवाजा बंद हुआ, बल्बों में रोशनी के खिल गए सहस्र दल कमल। भला बंद होने से रोशनी का क्या है रिश्ता, उसने सोचा। डल्लम पर लेटी चटाई चुभी घर की, अंदर कहीं रीढ़ के भीतर। तो क्या एक राजकुमारी ही होती है हर औरत? 7 गलीचों के भीतर भी उसको चुभ जाता है कोई मटरदाना आदिम स्मृतियों का। पढ़ने को बहुत कुछ धरा था, पर उसने बांची टेलीफोन तालिका और जानना चाहा अंतरराष्ट्रीय दूरभाष का ठीक ठाक खर्चा। फिर अपनी सब डॉलरें खर्च कर उसने 3 किए अलग अलग कॉल। सबसे पहले अपने बच्चे से कहा, हेलो हेलो बेटे, पैकिंग के वक्त सूटकेस में ही तुम उड़ गए थे कैसे? सबसे ज्यादा याद आ रही है तुम्हारी, तुम हो मेरे सबसे प्यारे। अंतिम दोनों पंक्तियां अलग अलग उसने कही। ऑफिस में खिन्न बैठ अंत शंत सोचते अपने प्रिय से, फिर चौके में चिंतित बर्तन खटकाती अपनी माँ से। अब उसकी हुई गिरफ्तारी, पेशी हुई खुदा के सामने कि इसी एक जुबान से उसने 3 लोगों से कैसे ये कहा, तुम हो मेरे सबसे प्यारे। यह तो सरासर है धोखा, सबसे ज्यादा माने सबसे ज्यादा। लेकिन खुदा ने कलम रख दी और कहा, औरत है, उसने ये गलत नहीं कहा। एक औरत का ये रंग है हिंदुस्तान में। और तीसरा जो लेखिकाओं का जो वर्ग कहलाता है, उनका क्या कहना है। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चना जोर गरम के लिफाफे बनाने के पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उम्मीदें देखी जाती है कलाई खड़ी अलग सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर ठसाठस ठुसी हुई बस में। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा, हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि छिछुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई ची ची। दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम से फैली हुई अगर धत्त जंगली लताएं, खाती पीती और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगन है ये कहानियां और कविताएं। फिर ये इन्होंने थोड़े ही लिखी है,
कनखियां, इशारे और फिर कनखी। हे परम पिताओं, परम पुरुषों, बख्शो बख्शो, अब हमें बख्शो। अब मैं आपसे कहूंगी प्रीता कि आप, सुशीला आपसे कहूंगी कि इंडियन फेमिनिज्म का आपा को बताएं और क्या रंग है और वो कैसे अधूरे पुरुष को पूर्ण करने की। विद्यापति की एक लाइन है ना, पिया मोरा बालक हम तरुणी, पिया लेली गोदक चलनी बाजार। तो अपने ही प्रिय को गोद में खिलाने का दुख क्या होता है, इस बात पर उसके ग्रोथ की जो हम इतनी चिंता कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको कहती हूँ। शुक्रिया हमिदा जी। हमिदा जी, जैसा आपने कहा, भारतीय संस्कृति में धर्म ने औरत को क्या दिया। हर माता पिता अपनी बेटी से क्या कहता है, सीता बनो, सावित्री बनो, क्यों नहीं दुर्गा बनो, क्यों नहीं काली बनो। तो यही सवाल मेरा हम सबसे है कि क्यों ना हम बेटियों को इतना समर्थ बनाएं, इतना मजबूत, इतना ताकतवर बनाएं कि वो खुद अधिकार ना मिले तो खींच ले और छीन ले। तो धर्म का आदर है, सम्मान है, किंतु विवेक भी उतना ही महत्वपूर्ण है, समय की मांग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अपनी बेटियों को जन्म से ही संस्कार ऐसे देने होंगे कि आप किसी दशा में कमतर नहीं है, किसी तरह से कमतर नहीं है। और जैसा पिताजी ने कहा कि जेल में क्यों आती है, नियम क्यों तोड़ती है, औरत बहुत घुटती है, बहुत दबती है, बहुत तड़पती है। जब वो डूबने के कगार पर आती है तब मरने और मारने के सवाल पर आकर कुछ कर बैठती है। तो क्यों सहा कि किसी भी औरत ने इतना क्यों सहा है, क्यों सहे वो, सिर्फ औरत क्यों सहे। और सहने का एक ये मतलब तो नहीं होता। आजकल मैं गुड़गांव में रह रही हूँ, हिंदुस्तान के बहुत से राज्यों में रही हूँ, मेरे पति भारतीय नौसेना में थे, तो बहुत से राज्यों में रही हूँ। मैंने काफ़ी संस्कृतियों का बहुत पास से निरीक्षण किया है, देखा है उन्हें, और हर जगह बदलाव आ रहा है। बहुत खुशी होती है बदलाव देखकर, किंतु ये कैसा बदलाव है। मल्टीनेशनल्स के आगे लड़कियाँ सिगरेट के कश लगाती हुई फैशन मांगती हैं, बहुत मेधावी हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत मोटी मोटी तनख्वाहें लेती हैं, मांगती हैं, जानती हैं कि धुएं से उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है। क्या ये धुआं उड़ाना फैशन है? क्या ये आधुनिकता है? क्या हम अधुना नारी कहेंगे? अपने ही स्वास्थ्य को खराब कीजिए, आप पैसे बर्बाद कीजिए, तो क्या आप आधुनिका कहलाएंगी? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि ऐसी क्या बात है, तो क्या मर्द लोग भी तो सिगरेट पीते रहते हैं? वो भी ना पिए ना। वो क्यों पिए? मर्दों को किसने इजाजत दी? आप मर्दों को तो नहीं कहते कि क्या ये अधूरा मर्द है? आप सोचिए, ऐसा है कि बीड़ी तो गाँव में लोग बहुत पीते हैं, औरत मर्द दोनों, और रेड इंडियंस तक पिया करते थे कुछ ना कुछ तंबाकू नोशी। मतलब ये कि अगेंस्ट इट, इट्स अ वेरी बैड हैबिट। लेकिन ये औरतों के लिए काहे को कह रही हैं आप? हेल्थ का सवाल तो ठीक है, लेकिन ये अपनी चॉइस का मामला, जब हम औरतों की चॉइस की बात कहते हैं तो जल्दी तोड़िए, जरूर तोड़िए। औरतों के लिए सवाल उठाना कि वो सिगरेट पीती हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी एमएनसी आ गए, इसलिए ऐसा ना। मेरी दादी चिलम पीती थी, तो उसको आप आधुनिकता से नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये था, जंजीरें तोड़िए, जरूर तोड़िए, लेकिन बहुत से काम जंजीरें तोड़ने के लिए अपना स्वास्थ्य क्यों हम खराब करेंगे? और ठीक है, आदमियों को भी हमने मना किया है। मेरा बेटा स्मोकिंग करता है, मेरा बेटा स्मोकिंग करता है, मैंने उसको बहुत बार कहा है कि अतुल स्मोकिंग मत करो। उसने स्मोकिंग तब शुरू किया जब वो नेशनल डिफेंस अकेडमी में था। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद मेजर पांडे की एक गलती के कारण उसकी स्पाइन इंजरी हो गई, स्पाइन टूट गई, पीठ की रीढ़ की हड्डी टूट गई, और लड़के ने डिप्रेशन में स्मोकिंग शुरू किया। तब से मैं कहती हूँ बेटा स्मोकिंग मत करो। बेटे ने कहा when I will have my first child, when my wife conceives, I will quit. This is turning into a So definitely it is bad. Wrong is wrong and bad is bad. यहाँ पर लिंग भेद का तो प्रश्न ही नहीं है। बिल्कुल। वही तो बात है। हाँ, बिल्कुल, सरस्वती है, शारदा है। हाँ, बिल्कुल।
कि जो बनी हुई नायिकाएं होंगी और एकदम फर्स्ट रेट स्त्रियां होंगी, वो तो एस्थेटिक्स उनके तो सौंदर्य और उनकी और चुप्पी का रहस्यमय घेरा ही सबको काम का समय तो उपदेश दे देगा, क्रियाहट छेड़ देगा, उनको यूं ही उनका चित्त परिवर्तन। लेकिन वो जो बोल रहा है वो सेकेंड रेट का है, वो दलिताएं हैं और वर्किंग विमेन है। जहां बोलेंगी तो बोलने से जो चुपचाप की सहमति है यहाँ पर कि जो जबान खोलेगा वो सेकंड रेट ही होगा, उसमें कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स से भी नीचे की कोई चीज होगी। जबकि हमें बताते हैं जितने भी अनुभाषिक सिद्धांतकार हैं बाहर के फ्रांस के कि औरतों को तो अपनी माँ की छवि से अलग नहीं होना पड़ता, वो आराम से एक इमेज से दूसरे इमेज में तो उनकी भाषा बहुत उच्छल होती है। और पुरुषों को बचपन में ही चूंकि माँ की इमेज से जो माँ सबसे प्यारी है उससे अलग होना पड़ता है, उससे उनको कुछ ऐसा चित्त में उनके परिवर्तन होता है कि वो कड़क सिंह देखना चाहते हैं, है ना। पूंछ झड़ गई मूंछ में, मूंछ मतलब मैं ऐसे मूंछों के खिलाफ नहीं, लेकिन फिर भी वो मूंछों की भूमिका अदा करती हुई जो मूंछ, जो वो उसके भाषा में वो पेट्रियार्की का जो एक रंग है जो हर जगह दिखाई देता है, वो भी शायद बचपन में ये जो हुआ होगा उनके साथ कि उनके साथ ज्यादती हुई होगी, अपने पर कहते होंगे लोग कि माँ जैसे रहोगे, माँ जैसे बनोगे तो सिसी बेबी जिसको कहते हैं आप वैसे हो जाएगा, तो जबरदस्ती जो अपने को कड़क सिंह बनाए रखते हैं। क्या इसको क्योर करने के लिए हमारे यहाँ स्त्री मंडल में या स्त्री लेखन में कुछ हो रहा है कि वो भी भाषण धर्मिता उनकी भाषा से चली जाए, संवाद धर्मिता आए? देखिए मैं ये सोच रही थी कि ये तो बहुत बड़ा आप लोगों का यानी कि जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल है तो यहाँ तो बहुत ही अच्छे सवाल उठाए जा सकते हैं, तो अधिकार वगैरह तो अपनी जगह, लेकिन बात जो कॉन्सेप्ट है मसलन ये रिलीजियसली एक बात जो मुझे एक औरत होने के नाते हमेशा बड़ी हैरान कुन लगती थी वो ये कि मेंस्ट्रुएशन को तमाम रिलीजन्स में इतना गंदा, इतना नापाक क्यों समझा जाता है। चाहे वो ये इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमिनन और ये एक मेल फिनोमिनन है, और जो अगर औरतें भी कहती हैं वही दोहराती हैं तो अक्सर जो गुलाम होते हैं वो आकाओं की कहीं भी बात दोहराने लगते हैं। तो जबकि ये वही ब्लड है जिससे कि बच्चा बनता है कोख में और नया जीवन, और जीवन मतलब है सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि आत्मा भी इसी से निकल रही है, और आत्मा तो बहुत पवित्र होती है और जीवन तो बड़ा, तो इसको क्यों और उस जमाने में औरत को क्यों इतना ज्यादा जलील किया गया है, कंटिन्यूसली किया जाता रहा है। हमने तो इस पे एक कविता भी लिखी थी, मगर मैं अपनी इंडियन दोस्तों से पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोगों ने कभी इस पर सोचा? फमीदा जी, नई रिसर्चेस कहती हैं कि जो जिसकी बात आपने कही, इस ब्लड से सबसे अधिक स्टेम सेल्स पाए जाते हैं और इनसे 76 तरह की जो लाइफ मैनेजमेंट डिजीज हैं जो कभी ठीक नहीं होती हैं, जो क्योर नहीं की जा सकती, आज सारी दुनिया में रिसर्चेस हो रही हैं, ठीक की जा सकेगी। तो ये जिसको पवित्र कह रहे हैं वो तो बहुत पवित्र हुआ। बड़े बड़े इंसुलिन माफिया जो है डायबिटीज को ठीक नहीं कर सकते हैं, इससे डायबिटीज को ठीक करने की बात चल रही है, हाइपरटेंशन को ठीक करने की बात चल रही है, तमाम किस्म की बीमारियां बना बनाया है। लेकिन यही वो जमाना है जब औरतों को कोई मजहबी किताब छूने की इजाजत नहीं होती, वो मंदिर में नहीं जा सकती, वो मस्जिद में नहीं जा सकती, वो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो नापाक है। तो इस पर हमने एक कविता लिखी थी, सुना है? देखिए कविता जो है ये हम आपको सुना रहे हैं, तो उर्दू में देखिए आप जो कह रही हो बिल्कुल सही है कि अब जो इसको रूप दिया गया है जहाँ menstruation is a dirty dark secret and women are not even allowed to speak about it, ये कहा जाता है कि एक्चुअली जो ये औरत को अलग रखा गया था हमारे समाज में, ये सिर्फ इसलिए इसकी शुरुआत अच्छी तरह से हुई थी क्योंकि एक औरत जो कि सिर्फ ड्रजरी में और घर के काम में लग जाती थी, सिर्फ बाहर ये एक
पीरियड था उसके जीवन में जबकि वो घर के कामकाज से अलग रखकर और उसको आराम करने के लिए ये वक्त दिया गया था. With time, something that started off in favor of the woman actually turned against her. So we need to reoccupy spaces that were given for women and not co-opt them. That's the point. क्या शबाना आप सीरियसली सोचती हैं कि मर्द इतने ज़्यादा मेहरबान थे और इतने बड़े थे दिल के, उन्होंने औरतों को आराम नहीं, औरतों ने the women in the families did it. The women in the family do. अगर हम जो है ना इन चीजों को इनकी बारीकियों में नहीं जाएंगे महताबा, we will never reach any conclusions that are complex. The whole point in, for instance, dowry was also because there were unequal laws of inheritance, and so you gave some part of it, and then all of those were abused. But the fact is कि आज जो उसके साथ हो रहा है वो completely unacceptable है. लेकिन एक हमको create करना पड़ेगा for women who are involved in tragedy to have periods in their life when they are free from domestic chores. लेकिन देखिए, मैं आप तो कुछ और बात कह रही हूँ शबाना, आपने यू मिस्ड माय पॉइंट. मैं तो ये कह रही हूँ कि ये तो ट्रेजरी की बात नहीं है, काम की बात नहीं है, बल्कि उसका पाक होना, उसका मुकद्दस होना, उसका नमाज पढ़ सकना, उसका जो है वो मंदिर में जा सकना. और यानी कि इंडिया में भी इसका ट्रेडिशन तो यही रहा है. इसकी जड़ें कहाँ हैं गालिबन. और देखिए, एक मर्दाना डोमिनेशन का जो है वो हज़ारों बरस से चल रहा है. ये हम नहीं कह सकते कि किसी भी वक्त औरतें इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि वो जो है अपना फिलॉसफी और तो औरतों के फेवर की चीज़ें नाफिज करती थी. ऐसा हमको नहीं नज़र आता है, उसके निशान नहीं नज़र आते हैं. गालिबन मेंस्ट्रुएशन में एक तो औरत सेक्सुअली शायद इतनी ज़्यादा काम की ना हो, मेसी ज़्यादा हो जाएगा सेक्सुअल एक्ट एक मेंस्ट्रुएटिंग औरत के साथ. तो एक तो ये वजह उसके नाकारा होने की हो गई, और दूसरी ये भी कि बिल्कुल मर्द जो हैं उनको मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, तो उनको एक चीज़ बहुत अजीब लगी, इसलिए औरत को नापाक बनाया गया. तब हमने एक नज़म लिखी थी, बैठ जाइए शबाना जी. मैं भी एक बात इस पे कहूँगी कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं आराम करना, नहीं तो आज देखिए कंस्ट्रक्शन जो लेबरर्स हैं वो बच्चे को पैदा करने के बाद फौरन काम में लग जाती है. तो शायद ये बात नहीं होगी, एक पक्ष होगा आपके बात का कि आराम करने के लिए ऐसा किया गया होगा, लेकिन एक गरीब औरत उसको कभी आराम नहीं होता है. वो कभी वो तो बच्चा पैदा करने के बाद भी आराम नहीं करती है. वो 3-4 दिन तो क्या आराम. बोलिए अच्छे से मौजूद पे गुफ्तगू हो रही है. It's important that we speak into the mic because otherwise nobody can that's I'm sure everybody has I do need to clarify my position. I work on women's issues, and one of the things I've constantly talked about is that in a society where menstruation is considered a dirty, dark secret, what is it leading to? It is leading to urinary tract infections in women, because women do not have a patch of sunlight in which, because they use cloth, they don't use sanitary napkins in many areas, in our rural areas, और उनके पास वो धूप का एक टुकड़ा भी नहीं है जिसमें वो धूप में उस कपड़े को जब धो के लटका सकती है, तो वो अपनी खाटों के बीच में रख देती हैं उस कपड़े का. That's the way they get so many reproductive tract infections. So please do not misunderstand what I'm saying with what has happened today. At no point am I condoning that, but I'm saying that if we need to understand, it might be interesting to also investigate from which points they actually started. That's the only thing that I'm saying. Which are the uses of adversity? वैसे आपका तंत्र में menstruating women का बहुत ही अलग productive हो, उस बारे में बात में समझती हूँ कि ये जो अलग-अलग चीजें नजर आती हैं, हमें कहाँ women issue, कहाँ menstruating women, कहाँ प्रकृति के attributes, लेकिन कहीं ये आपस में जुड़कर और औरत की एक जो है कमतर हैसियत मिलकर बना रहे हैं. तो इसलिए इनके अलग-अलग चीज़ों को औरतों ने अलग-अलग तौर पर जो है वो किया है, चैलेंज किया है. तो हमने इस पर लिखा था, वो था वो एक जने नापाक है. जन
लहू की कैद में, गर्दिश में माहो साल की, तपती हवस की आग में, अपनी तलब की चाह में, ज़ाइदे इब्लीस थी। ज़ाइदा का मतलब पैदा की हुई, और इब्लीस शैतान। तो कहते हैं कि भगवान ने मर्द को और शैतान ने औरत को पैदा किया। ज़ाइदा इब्लीस थी, जल्दी उसी की राह में, उस मंजिले मोहम को जिसका निशान पैदा नहीं, संगम वो नूरो नार का जिसका पता मिलता नहीं, उबले लहू के जोश से पिस्तान उसके फट चुके, पिस्तान यानी छाती, पिस्तान उसके फट चुके, हर नोके खारे राह से बंदे लहम सब कट चुके। रास्ते के कांटों ने उसके गोश्त को चीर दिया है, उसके बदन की शर्म पर तकदीस का साया नहीं। यानी वो जो कि औरत के बदन की शर्म समझी जाती है, तो जब वो मेंस्ट्रुएट कर रही है तो उस पर जो एक होलीनेस का साया होता है वो चला गया है, वो बिल्कुल अब तो एक शैतानी चीज है, क्योंकि वो तो होलीनेस का साया निकल गया। वो मंदिर में नहीं जा सकती, वो मस्जिद में नहीं जा सकती, उसके बदन की शर्म पर तकदीस का साया नहीं, लेकिन खुदाए बहरोबर फरमान तेरे सब रवा, हाँ उस जने नापाक के लब पर नहीं कोई दुआ, सर में कोई सजदा नहीं। उसमें आप शबाना जी कह रही थी और आप जो कह रही थी, दोनों का एक पर्सपेक्टिव है। मैं आपको बताना चाहूंगी, इसका शीर्षक है मरने की फुर्सत। ईसा मसीह औरत नहीं थे, वरना मासिक धर्म 11 बरस की उम्र से उनको ठिठकाए ही रहता देवालय के बाहर। बेथलेहम और यशुअलम के बीच कठिन सफर में उनके हो जाते कई तो बलात्कार, और उनके दुधमुहे बच्चे 40 दिन और 40 रातें जब काटते सड़क पर, भूख से बिलबिलाकर मरते, एक एक कर ईसा को फुर्सत नहीं मिलती सूली पर चढ़ जाने की भी। मरने की फुर्सत भी कहाँ मिली सीता को, लव कुश के तीरों के लक्ष्य के तक। She committed suicide only when she raised her 2 children. प्लीज आप बताएं जरूर। अब जो इन्होंने फरमाइश की थी हमसे नज़्म की, हुजूर में इस सियाह चादर का क्या करूँ। दरअसल ये हमारी सोसाइटी में, जो कि पाकिस्तान ईरान बेसिकली मुस्लिम मेजॉरिटी सोसाइटी, इसके अंदर चादर वादर का जो है बहुत जोर शोर से, वरना क्या था, देखिए किसान मुसलमान औरत तो बस वो बुर्का नहीं उड़ती है, काम करती है वो खेत के अंदर जैसे कोई भी और काम करता है। फिर जब उस पर थोड़े पैसे आ जाते हैं तब उसका किसान हस्बैंड उसको एक बुर्का खरीद कर देता है। यानी कि मिडिल क्लास की ये बात थी ज़्यादा, और मजहब का नहीं, मगर मजहब के नाम से जोड़कर बहुत शुरू हुआ ईरान में इनकलाब के बाद। तब हमने लिखा था कि ये जो आप सियाह चादर हम उनको दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, हुजूर मैं इस सियाह चादर का क्या करूँगी, ये आप क्यों मुझको बख्शते हैं बसद इनायत। मैं सोग में हूँ कि इसको ओढ़ूं, गमो अलम खल्क को दिखाऊं, न रोग हूँ मैं कि इसकी तारीकियों में खिफ़त से डूब जाऊं, न मैं गुनहगार हूँ न मुजरिम कि इस सियाही की मोहर अपनी जबी पे हर हाल में लगाऊं। अगर न गुस्ताख मुझको समझे, अगर मैं जान की अमान पाऊं, तो दस्त बस्ता करूं गुजारिश कि बंदा परवर हुजूर के उजरे मुअत्तर में एक लाशा पड़ा हुआ है, न जाने कब का गला सड़ा है, ये आपसे रहम चाहता है। हुजूर इतना करम तो कीजिए, सियाह चादर मुझे न दीजिए, सियाह चादर से अपने उजरे की बेकफन लाश ढांप दीजिए। किससे फूटी है जो अफूनत, फूनत यानी बदबू, किससे फूटी है जो अफूनत, वो
कूचे कूचे में हाँकती है, वो सर पटकती है चौखटों पर, बरहनगी अपना अपना नंगापन बरहनगी तन की ढांपती है। सुने जरा दिल खराश चीखें, तो चादरों में भी बरहना है। ये कौन है जानते तो होंगे, हुजूर पहचानते तो होंगे, ये लौंडियां हैं कि यरगमाली हलाल शब्बर रही, दमे सुबह दर बदर है। तो औरतें जो माले गनीमत में आती हैं उनको वो तो बच जाती है ना और हलाल हो जाती हैं। उनको मजहब कहता है कि जी हाँ ठीक है ये तो बच गई, आपको मिल गई। तो कोई मजहब कोई खुदा और शायद कोई भगवान में हिंदुज़म के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन शायद उस पर कोई नाराज़ नहीं होता कि ठीक है कि हम माल माना और बन कि यरगमाली हलाल शब्बर रही, दमे सुबह दर बदर है। ये बांदियाँ हैं हुजूर के लुत्फ़े मुबारक के निस्फ़ विरसे से मोतबर है। लुत्फ़ा मर्द का सिमन, और ये एक अब्राहमिक वो है कि जो बच्चा शादी से पैदा होगा, जिसका जहेज आएगा, जिसका सब कुछ होगा, उसकी औलाद को जो कि इनहेरिटेंस मिलेगा, तो इस्लाम में भी इसी तरह से कायदा रहा है। तो जो बांदी होगी उसको उसका आधा, यानी तो बिल्कुल यानी समझिए कि उसको आसमान पे पहुंचा दिया ना कि भाई वाह देखिए हमने तो आपसे शादी भी नहीं की, फिर बच्चा पैदा किया आपसे, कुछ तो दे रहे हैं ना, तो शिकायत काहे की, हाँ उसमें खुश होइए, शुक्रिया अदा कीजिए। हुजूर के लुत्फ़े मुबारक के निस्फ़ विरसे से मोतबर है। ये बच्चियाँ हैं कि जिनके सर पर फिरा जो हजरत का दस्ते शफ़क़त, तो कम सिनी के लहू से रीशे सुबेद रंगीन हो गई है। कोई भी रिलीजन छोटी छोटी बच्चों की बूढ़े बूढ़े मर्दों से शादी को पाप नहीं बताता है ना, कोई भी मजहब नहीं, वो बस ठीक है, ये तो ठीक है। तो उनकी जो दाढ़ियाँ हैं वो लाल हो गई हैं बचपन के खून से, कि कमसिनी की लहू से रीशे सफेद रंगीन हो गई है। ये बीवियाँ हैं कि हुजूर के, ये बीवियाँ हैं कतार अंदर कतार बारी की मुंतजर हैं कि कई कई बीवियाँ रखी हैं बारी बारी, वो इंतजार में बैठी हैं अब हमारी बारी आएगी उनके कमरे में जाने की, तो बारी की मुंतजर हैं। हुजूर के हुजरे मुअत्तर में जिंदगी खून रो गई है, पड़ा हुआ है जहाँ ये लाशा तवील सदियों से कत्ले इंसानियत का ये खूचका तमाशा। अब इस तमाशे को खत्म कीजिए हुजूर, अब इसको ढांप दीजिए। स्याह चादर तो बन चुकी है मेरी नहीं आपकी जरूरत, कि इस ज़मीन पर वजूद मेरा नहीं फकत एक निशान शहवत। हयात की शाहराह पर जगमगा रही है मेरी ज़िहानत, ज़मीन के रुख पर जो है पसीना तो झिलमिलाती है मेरी मेहनत। ये चार दीवारियां ये चादर गली सड़ी लाश को मुबारक, खुली फजाओं में बादमा खोल कर बढ़ेगा मेरा सफीना। मैं आदमी नौ की हम सफर हूँ, the new man, this is the modern woman। मैं आदमी नौ की हम सफर हूँ कि जिसने जीती मेरी भरोसा भरी रिफाकत। सिस्टरहुड की बहुत अच्छी कविता है कि हरम में जो औरतें हैं उनकी भी आपस में जो दोस्तियाँ हैं, उनके जो आपसी रिलेशनशिप है, इसको बहुत अच्छे से कुरेद दी। और सिस्टरहुड जो हम कहते हैं कि कैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन ने भ्रातृत्व की बात की थी, फ्रेटर्निटी की बात की थी, लेकिन फेमिनिज्म में उसका दूसरा आयाम दिया सिस्टरहुड का कि हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय, हर नस्ल, हर धर्म में की चारदीवारियां फांद कर सब बहनें, ऐसे सब औरतें बहनें हैं, क्योंकि उनके शोषण की प्राइम साइट शरीर है। वो किसी भी जगह, वो कितनी भी शोषणों की प्राइम साइट वो शरीर है। तो ये बहनापा अपनी ही हरम में जो और औरतें हैं साथ में इक्कड़ दुक्कड़ खेलती होंगी कि क्या करती होंगी आपस में, वो आपस में हंसती बोलती भी होंगी ना आपा। अक्सर एक दूसरे को जहर दे देती हैं। लेकिन फेमिनिज्म में ये सिखाया है कि
कहा यह जाता है कि लोग जो रिलीजन्स हैं, धर्म है, उनको जो प्रीस्ट होता है वो मिसरिप्रेजेंट करता है, जो मुल्ला और पंडित होते हैं वो मिसरिप्रेजेंट करते हैं। दरअसल धर्म ऐसे नहीं है, मेरा ख्याल है ये गलत है, धर्म ही ऐसे। ये कहना कि रिलीजन फेयर है, ये फर्क है। रिलीजन फेयर नहीं है, और हर रिलीजन दुनिया का हर रिलीजन औरतों के खिलाफ है, और औरतों को वो सही जगह, सही राइट, सही पोजीशन, सही इज्जत नहीं देती। लेकिन आयरॉनिकल बात ये है कि ये औरतें हैं जो अपने बच्चों को धर्म सिखाती हैं। नहीं, गुलामी है जो मुझे बात कंप्लीट कर लेती है। आप अपने घर में बच्चे को धर्म सिखाती हैं या नहीं, ये अपने आप से सवाल कीजिए। क्या आप उसे पूजा में, नमाज में, मीलाद में ले जाती हैं? नहीं। क्या आप अपने बच्चे और बच्ची से कहती हैं कि बेटा ये करो कि नहीं? आप अपने बच्चे को रिग्रेसिव बनाती हैं। आज आप लोग कसम खाइए, और जितनी औरतें यहाँ बैठ के कसम खाएं, अगर आपको औरतों को राइट दिलाने हैं, औरतों को इज्जत दिलानी है, तो उन्हें रिलीजन से दूर रखिए। हमें ये कहने दीजिए, हमें कहने की इजाजत दीजिए कि देखिए, अगर हम साइंटिफिकली रिलीजन को देख सकें, तब हम बिल्कुल ये पाएंगे कि ये जो आज मेजर रिलीजन्स चल रहे हैं, तो वो एक खास वक्त में एक उनकी फॉर्मेशन हुई है, हमेशा से ऐसे नहीं थे। तो इस पर किसी ने बड़े दिलचस्प ये सवाल उठाया था कि देखिए, जितने भी धर्म हैं उनमें खुदा को या भगवान को बादशाह कहते हैं, राजा कहते हैं, अल्लाह बड़ा बादशाह है, खुदा बड़ा बादशाह है, जीसस इज द किंग। तो ये कोई नहीं कहता है कि खुदा बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है या खुदा तो हमारा सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, इस तरह तो कोई नहीं कहता। तो जिस वक्त के बादशाहत जो है तारीख में, किंगशिप जिस वक्त के फुली एमर्ज हुई, वही वक्त है। इसी वजह से जो है खुदा को भी किंग ही कहते हैं, और ट्राइबल चीफ भी नहीं कहते हैं। Nobody says कि God is a great tribal chief, इस तरह से कोई नहीं कहते। तो किंग के साथ ये जुड़ा हुआ है। लेकिन देखिए जावेद, जो आप ये कह रहे हैं कि हम सिखाते हैं या नहीं, तो ये दोनों मिलजुल कर सोसाइटी का भी एक एवोल्यूशन होना है। और जो मजलूम तबके होते हैं वो अपने आप को महफूज, अपनी सिक्योरिटी इसमें समझते हैं। ये जो राइट नजरिया है, जो राइट आइडियोलॉजी है, उसको एक्सेप्ट करें। औरतें इस वजह से अपनी बच्चियों को तो वही सिखाएंगे ना, भाई तुम बच्चो, जिससे तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजरे। तो ये बात है। तो ये मर्दों की भी जहन की जब तक सोच में तब्दीली नहीं आएगी साथ साथ, उस समय तक ये बात बहुत मुश्किल है। अकेली औरत जो कि एक अब तो उठ रही है, लेकिन बिल्कुल मर्दों का साथ तो बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा होता है, जालिम तबके से वो लोग उठते हैं जो मजलूम का साथ देते हैं, और तभी तब्दीली भी आती है। आपा की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात और कहूँगी कि ये जो पीढ़ी हमारी है, ये माँओं से, पिताओं से इत्तेफाक नहीं रखती। मेरी बच्चियाँ मुझसे कहती हैं, एक दीपक जला लीजिए, बहुत है, किसी धर्म को, किसी भगवान को मानने की क्या ज़रूरत है? सूर्य देवता को प्रणाम कर लिया, दीपक जला लिया, घर के उत्साह के लिए कोई ज़रूरत नहीं है धर्म की। वो मुझे समझाती है। तो ये पीढ़ी भी हमारे सामने है, और इस पीढ़ी से हमें बहुत उम्मीद है। हाँ, लेकिन प्रीता जी, ये पीढ़ी है जो कि जब लैपटॉप पे काम करते तो सामने गणेश जी का चित्र भी बनाते थे। जब जाती है कार ड्राइव करते, मंदिर पड़ गया तो चलो नमस्ते नहीं कर सकते, व्हील है तो ऐसे ऐसे भी करते। मैं इसी बात से अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी। आधुनिक होने का तात्पर्य केवल इतना है कि हम अपनी मेधा से काम लें, विवेक से काम लें, अपने निर्णय इस तरह करें कि हमारे व्यक्तित्व का विकास हो, हमारे परिवार का विकास हो, और जो भी हम चॉइस करें, फ्रीडम ऑफ चॉइस, वो हमारे भले के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, ना कि खराब करे स्वास्थ्य को, धन को या रिश्तों को।
कि अरे तेरा चांद मुखड़ा, मेरी जान का ये टुकड़ा, देखते ही जाऊं रे, कलेजे लगाऊं रे, तुझको अपनी बाहों का झूलना झुलाऊं रे, वारी वारी जाऊं रे। लगे कल की बात मुझको, याद है वो रात मुझको, तूने जब जन्म लिया, रात थी वो बड़ी काली, पीड़ा तड़पाने वाली, पर तेरी हुंकार सुनकर दिया सा था जल गया। कमल हाथ, फूल हाथ, कमल पैर, नैन से लगाऊं री, वारी वारी जाऊं री। सुन रे मेरी कोख जाई, ये नगर अन्याय का है, गुण तुझे सिखाऊं क्या, आती जाती नारियों ने बूटे काढ़े जाली जाली, परोसी थी थाली थाली, खा गया जो भेड़िया, आज हर रसोई खाली, तुझे मैं दिखाऊं क्या, गुण तुझे सिखाऊं क्या। तुझे जब मैं गोद में लूं, समय की पुकार सुनूं, बड़ी हाहाकार सुनूं, रन की ललकार सुनूं, यही बार बार सुनूं, तेरा गुण है वीरता। सुन मेरी नन्ही सी जान, ये जमी ये आसमान, सुख की सारी आन बान, मंडियों में भरा धान, जब तलक हमारा नहीं, चैन से गुजारा नहीं, किसी का सहारा नहीं, कोई और चारा नहीं। भेड़िए से नहीं डरना, मेरी जान जम के लड़ना, कभी मत होना निराश, वीरता सिखाऊं तुझको, शेरनी बनाऊं तुझको, डर न भटके आसपास। बनना है ना हाइपर मैस्कुलिन बनना है, और भेड़ भेड़िया का रिश्ता औरत मर्द में न रहे, एक दोस्ती का रिश्ता रहे, यही बेसिक उसूल है। और मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था कि साहित्य जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है रिलीजन का, लेकिन वही स्पिरिचुअल वैल्यूज की वकालत वो भी करेगा। और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के खतरे हैं। प्रेम जब विवाह में उसका संस्थानीकरण होता है तो समस्याएं होती हैं। स्पिरिचुअल वैल्यूज का जब धर्म में संस्थानीकरण होता है तो उसकी भी समस्याएं होती हैं। समस्याएं वैल्यूज की नहीं, और हम औरतें तो चलनी और क्या कहते हैं सूप के सहारे ही परंपरा से रूढ़ियां चुनने के लिए बैठी हैं। तो बैटरी रिचार्ज करें परंपरा की, लेकिन सोच समझ के इसी स्वर के साथ हम इसे कंक्लूड करते हैं। और अगर आपके मन में सवाल हो तो आप पूछें।